Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the first formal question about is about the today we are going to talk about the null hypothesis. What is null hypothesis and why we use it? So basically, null hypothesis is towards the refutation of two phenomena existing. For example, ये क्या हुआ है? हाँ. So hypothesis means that investigators aim are two. Number one, to draw a conclusion about true population from sample proportion. जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर हम किसी विलेज में स्मोकिंग के बारे में ये पता करना चाहें कि टाउन में स्मोकर्स कितने हैं, तो उसके लिए हम उसमें से सैंपल लेते हैं और फिर सैंपल के ऊपर हमने ये ड्राइंग बनाई थी कि एक सैम्पलिंग प्रोपोर्शन होती है, जिसके ऊपर हमने एक पूरी डिबेट की थी कि सैम्पलिंग प्रोपोर्शन सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही एक्सट्रैक्ट है और उसी से मिलके बनता है। तो अब वही सैंपल प्रोपोर्शन हमें हेल्प करता है एक कंक्लूजन ड्रा करने के लिए टुवर्ड्स द ट्रू पॉपुलेशन, एंड देन वी आल्सो वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट दैट पॉपुलेशन. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी से दैट Chinese have a black color, Chinese heads have black color, या हम ये कहें कि जितने भी चाइनीज बच्चे होते हैं उनके सर पे जो बाल हैं वो काले होते हैं, और इस काम को हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि every Chinese have a black hair on his head. Now, if I assume I screen 1 million, 2 million individuals and I see all of them as black hairs, now this is a very strong point to prove my hypothesis that every Chinese individual have black hairs. But if I came across one or two individuals who have gray or any shade of color on their heads, then this is a straightaway refutation of my hypothesis. So a safe way to exercise these hypotheses is always start with a null hypothesis, or always say that these two quantities are equal. In terms of cancer research and in terms of biological research, we always prefer to go for the same version. For example, over here, what you are looking, that in a trial on prostate cancer, 218 patients were randomly assigned either novel or standard treatment. Now, there is a standard treatment plan, there is a novel treatment plan, and now we are estimating which treatment works better. For example, the 69 individuals who have been treated are alive as compared to the total FOC of 108. So we say that 63% individuals alive in this treatment as compared to, and this I have calculated by dividing 69 over 108. And over here, if I say that the 45 individuals as compared to the conventional treatment plan remain alive out of 110, then the treatment says that the probability of using this treatment is 40% individuals will remain alive by using a standard treatment. Now, in order to establish that the novel treatment is successfully more effective or is downgraded, the first foremost hypothesis would be that there is no difference between novel treatment and the standard treatment. We say both the treatments are equally effective or they are not significantly different. So this is the trick we propose for our hypothesis. Now, once the hypothesis is being proposed, the same trick of conventional probability calculation is being made. So दो चीजें साथ साथ चलनी है. एक है probability estimation. Probability estimation वही है simple कि आपने कॉइन को टॉस करना है और बताना है हेड आया कि टेल आया. और इसी की एग्जांपल हमने आगे एक थोड़े से मॉडरेट फॉर्म में ले ली कि let's say in a veterinary clinic, in vitro fertilization clinic, choice of seeking Tom or Queen cat is not different. We assume and we build a hypothesis, that is null hypothesis, and we say that there is no difference that the people make in terms of choice of Tom or Queen in fertilization clinic. और हम ये कहते हैं कि जो probability है first मेल के आने की वो 0.5% है, यानी कि या मेल होगा या फीमेल होगा तो उसमें से आधे फीसद चांस है. Probability that first and second both samples is male is 0.5 into 0.5 is equal to 0.25. This is the probability. अच्छा, अब यानी probability उसके साथ आपस में multiply करते हुए values बनाती जा रही है. So 0.25, 0.125 ये values आपके पास add up होती जाएंगी और based on these values
you infer a certain finding, that is 0.03125. That is the probability that first, second, third, fourth, and fifth, all those kids or kittens obtained by in vitro fertilization are male. This is the probability. पहला था जी नल हाइपोथेसिस कि हमें हमेशा मेल और फीमेल इक्वल नंबर में मिल सकता है या इनमें कोई फर्क नहीं होता। जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन निकाली तो हमें समझ आई कि नहीं, इसमें तो हमें 5 दफा अगर मेल मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ व्हाट यू कैन से नल हाइपोथेसिस रिफ्यूट हुआ, और हमें ये सबक आया कि ये चीज नहीं है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएशन। फॉर प्रोबेबिलिटी वी जनरली राइट p कैपिटल, फॉर सैंपल प्रोपोर्शन वी राइट स्मॉल p's। अच्छा, इसके बाद ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज हैं, इनको आपको याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस तरफ क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यूज आपको क्या बता रही हैं। और ये 3 लाइंस, these 3 lines are going to help you in your own research domain, that if p value is greater than 0.1, the results are reasonably consistent with null hypothesis। कि इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, जो नल हाइपोथेसिस कह रहा है उसकी एग्रीमेंट के साथ चल रही है, यानी कोई फर्क फायदा नहीं है। अगर p वैल्यू बराबर है 0.05 के, तो देयर इज ए मॉडरेट एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। ओके, ये बात हमें समझ आ गई। फिर वो कहते हैं कि अगर लेस देन 0.01% है तो इसका मतलब है देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी आपने जो भी, ये देखो हाइपोथेसिस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, कि आपने जो भी डेटा रखा था उसके अगेंस्ट जो चीज है। हमारी पहली एग्जांपल थी ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, तो उस ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर हमें अगर प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.01 से लेस, तो इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस नल है, नल एंड वाइड है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कोई डिफरेंस ट्रीटमेंट के ऊपर, और उसके साथ हमें आगे लेकर चलना है चीजों को। अच्छा, ये जो आपको मैंने अभी ये वाली चीज आपको बताई है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सैंपल इज टॉम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सैंपल्स इन अ रो मेल, इसी की कंटिन्यूएशन मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और वो जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करनी है वो ये है, यस दिस वन, दिस इज बेसिकली वो जो था नल हाइपोथेसिस, वो सिर्फ आपका एक बैकग्राउंड बनाना था कि नल हाइपोथेसिस होता क्या है और नल हाइपोथेसिस क्यों यूज जरूरी है। मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो इट। नाउ coming back to the topic of epidemiology, what we learned so far is about the qualitative estimation, and where we just say whether the disease is present or not. But in terms of our disease, when we are talking about, there are certain quantitative parameters we need to assess. Why is the quantification estimation of a disease course required? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या है डिजीज की सिवियरिटी। आपके पास एक क्लिनिक में दो लोग हैं, दोनों कह रहे हैं हमें टेम्परेचर है, तो क्या 99 वाला टेम्परेचर वाला ज्यादा टेंशन सीकर है, या जिसको 103 या 102 टेम्परेचर हुआ है उसको आपको ये टेंशन ज्यादा चाहिए। इसी तरीके से प्रोग्नोसिस ऑफ अ डिजीज की एस्टिमेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर बेस लाइन ऑफ अ नेचुरल हिस्ट्री, सो दैट ट्रीटमेंट और एन अल्टरनेट इम्प्रूवमेंट में प्लीज बी डिजाइन। लुक एट द फॉर्मर एग्जाम्पल जो अभी मैंने दी, कि अगर इफ आई एम इंटरेस्टेड टू नो which treatment is more effective, either the surgical removal of a lump from a breast in terms of lumpectomy is more effective as compared to mastectomy, or we can go for chemo adjuvant therapies for breast cancer treatment. What treatment plan has a more preferential advantage over another? So prognosis जो है इसको quantitate करना एक क्लिनिशियन के प्रोस्पेक्टिव से भी, और जैसे आजकल कोविड-19 की डिजीज चल रही है, इस हिसाब से भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो हम इसके ऊपर अब बात करते हैं और उसमें हम अपने हाइपोथेसिस को इंटीग्रेट करेंगे। नाउ द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज़ हाउ वी कुड से, अब मैं इसको 1 मिनट में डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको ये आसानी से दोबारा से समझा सकूँ। अच्छा, जी। अब हम ये करते हैं कि why is the quantitative estimation of disease course required? Because of the three facts. Now to quantify prognosis, estimation is done by a certain time point. जिस टाइम पॉइंट पे मरीज आपके पास आया, आपने उस टाइम पॉइंट को एक सेट मार्कर अपने लिए स्टैंडर्ड बनाया और उस टाइम पॉइंट से शुरू किया। Now
For an actual disease onset, the disease course is variable. कैसे? देखें, डिजीज जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि आज आप उठे और आप बीमार हो गए। इसके लिए एक पूरी एक बैकग्राउंड स्टोरी होगी। उस स्टोरी का जो हाफ मिड है उसको कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जब से साइन एंड सिम्टम्स किसी भी बीमारी के एविडेंट हुए, दैट इज कॉल्ड एज clinical phase, and prognosis is always about the clinical phase. And if अगर कोई क्लिनिकल फेज से पहले हम कोई चीज डायग्नोज कर लें तो उसका एक एडवांटेज होता है, उसको हम बाद में लीड टाइम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं. So there is an actual disease onset in terms of cellular, let's say, mutation or toxicity happening in any cell, and then there is a pathological evidence about it. Patient doesn't feel anything, but he has a minor complaint. Then this phase is called as preclinical phase. Preclinical phase. यहाँ से लेके तो यहाँ तक. तो जो प्रोग्नोसिस है ये डिपेंड करती है सर्वाइवल के ऊपर कि इंसान बचता है कि नहीं बचता है, तभी प्रोग्नोसिस होगा ना. अगर हम ये कहें कि जनाब आपको फर्ज करें खुदा न खास्ता कोविड-19 है, तो इसका क्या प्रोग्नोसिस है? अगर फर्ज करें किसी बंदे के जो एज है वो ज्यादा बूढ़ा है, उसके अंदर लंग्स में पानी है, तो प्रोग्नोसिस गार्डेड है या फेवरेबल है एज कंपेयर टू सर्वाइवरशिप या डेथ. दो फैक्टर्स होते हैं ना जिनके ऊपर हम प्रोग्नोसिस को खड़ा करते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्नोसिस डिपेंड अपॉन द सर्वाइवर एंड द सर्वाइवरशिप डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ डायग्नोसिस. एट व्हाट टाइम पॉइंट द डिजीज इज एक्चुअली बीन डायग्नोस्ड. ठीक है. So from where we calculate survival, time of diagnosis. Now it is also important to mention over here two things in parallel. The time of diagnosis in certain diseases, like in acute case, it is very valid. कि आप acute case में जैसे flu हुआ या कोई और आपके पास कोई बीमारी आई, टाइफाइड आया, जिसमें आपका disease onset फटाफट आया और वो ट्रांसलेट हो गया, तो ये तो easy है. लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जहाँ पे जो डिजीज है वो अपना ग्रेजुअल टाइम कोर्स मुकम्मल कर रही होती है. फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस. अब आर्थराइटिस का जो मरीज होता है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट से डिजीज शुरू नहीं होती कि मुझे जोड़ में दर्द हुआ, कल किसी और में हुआ, कल किसी और में हुआ. द डिजीज सिवियरिटी वेरीज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ डायग्नोसिस. यहाँ पे हो रहा है या बिल्कुल साइन सिम्टम्स के साथ, जैसे कोविड का केस है, कॉलरा का है, टाइफाइड का है, साइन सिम्टम्स आए, आपने डायग्नोज किया और ट्रीटमेंट दे दी. तो प्रोग्नोसिस सर्वाइवल के साथ, सर्वाइवल टाइम ऑफ डायग्नोसिस के साथ एफिलिएटेड है. इसका मतलब ये है कि फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोग्नोसिस एंड सर्वाइवल we are dependent on some other parameters to be explained right now. The first foremost thing to express prognosis is case fatality rate. Remember, in our few last lectures, I have just touched one slide about case fatality rate. This is called CFR. इसके बारे में आपको लिटरेचर में या जो कुछ भी मिलेगा वो ये है, केस फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स बाय द डिजीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज्ड. नंबर ऑफ डेथ्स बाय डिजीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज्ड. दिस इज द CFR वैल्यू. कि सर ये अगर नंबर ऑफ आपसे ये पूछा नहीं है सर, क्या नंबर ऑफ न्यू डेथ्स नहीं है ये सर, केस फर्टिलिटी नहीं नहीं, नंबर ऑफ डेथ्स कर दो बाय द डिजीज बाय द नंबर ऑफ केसेस डायग्नोज्ड. मैं आपको अभी इसको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो है मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स जो है ना वो वाला. केस फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि कितने अमवात हुई एक डिजीज में डिवाइडेड बाय डायग्नोज्ड या टेस्टेड केस पॉजिटिव थे आपके पास. ये है केस फर्टिलिटी. और क्रूड मोर्टेलिटी रेट क्या है? मोर्टेलिटी रेट होता है अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स करें बाय द डिजीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट रिस्क. ठीक है. कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितने लोग रिस्क पे हैं मरने के, उसको कहेंगे मोर्टेलिटी. और अगर नीचे उसी डिजीज के केसेस हों तो आप कहेंगे केस फर्टिलिटी रेट. इसका मतलब यह है कि केस फर्टिलिटी रेट, ये बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं केस फर्टिलिटी रेट? केस फर्टिलिटी रेट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई भी बंदा कोविड-19 अफेक्टेड पूछे कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है इस आदमी के जिंदा बचने का, तो ये सवाल बड़ा सादा है लेकिन इसका जवाब जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है.
जवाब क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? जवाब इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें एक तो ट्रेंड समझना होगा। ट्रेंड समझना होगा कि डिजीज कितनी फेटल है इस रीजन के अंदर, इस लोकेशन के अंदर और इस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट के अंदर। दूसरी बात हमें ये समझनी होगी कि ओवरऑल डिजीज की मॉर्टेलिटी किन किन पैरामीटर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, उसकी एज से, हेल्थ कंडीशन से और प्रोबेबल एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स से। तो जो पहला पॉइंट है इसमें केस फर्टिलिटी का, वो ये हमें बताता है कि अब तक कितनी डेथ्स हुई डायग्नोस्ड केसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल कोविड-19 फरवरी में 2020 के अंदर जब ये आया था, तो वुहान के अंदर जो इंसिडेंस था केस फर्टिलिटी रेट का, वो 20% से अबव था। 20% से अबव था, दैट इज क्वाइट हाई as compared to 2021 where the incidence has largely been reduced, CFR reduced to 0.5%। इसका मतलब लोकेशन और टाइम चेंज कर देता है केस फर्टिलिटी रेट को। यानी अगर हम किसी का प्रोग्नोसिस बता रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो उस आउटब्रेक के अंदर किस जगह पे फॉल कर रहा है, फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ कि क्या वो आउटब्रेक डिजीज ऑनसेट के ऊपर है, बिल्कुल स्टार्ट की फेज में उसकी डिजीज है, या उसकी टेम्परिंग हो रही है, डिजीज का आउटब्रेक रिड्यूस हुआ है, यानी कि डिजीज आउटब्रेक के बाद टेपर हो रही है। डिजीज का पैटर्न एक पैराबोला फॉर्मेशन का होता है, एक ऐसा फेज आता है। अच्छा, दूसरी चीज जो एक्चुअल उसके आंसर उसके जवाब का होगा कि क्या मैं मेरा प्रोग्नोसिस क्या है डिजीज का, उसको वो जवाब मिलेगा इस सवाल से कि इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट क्या है। एक्चुअली आपके इन्फेक्शन का फेटल लेवल क्या है, वो है नंबर ऑफ डेथ्स बाय द डिजीज divided by the total number of cases in that disease. Now, there is a difference between case fatality, there is a difference between case fatality and infection fatality rate. Infection fatality rate है नंबर ऑफ जितने भी केसेस हैं कोविड के, अब वो केसेस जो आपने टेस्ट किए वो प्लस वो केसेस जो प्री क्लिनिकल फेज में थे, ये वाले प्री क्लिनिकल फेज में थे, जो क्लिनिकल फेज में ट्रीटमेंट की तरफ गए या डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट में गए, या ट्रीटमेंट के बाद जिनका फेट डिसाइड हो रहा है डेथ की तरफ या लाइफ की तरफ, ये सब केसेस को आप जब तक वो लाइव या डेथ नहीं होते आप उनको ऐड करेंगे इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट के अंदर, तो आप निकाल सकेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिजीज। अब ये वैल्यू जो है ट्रस्ट साइंसदान एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं इसकी तरफ होना चाहिए, लेकिन ग्रॉसली स्पीकिंग मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया रिपोर्ट्स आपको CFR बताती हैं, केस फर्टिलिटी रेट। क्या कि नंबर ऑफ डेथ्स हो रही हैं जी, हमारे पास CFR वैल्यू हाई आ रही है, पहले जो थी फरवरी में 20 थी, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, 21 के अंदर हमारे पास 0.5% रिडक्शन आ गई है। लेकिन इंटरेस्ट लोगों का ये है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर हमारे पास ज्यादा होते जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजीज केसेस हमारे पास ज्यादा हो रहे हैं या नंबर ऑफ डेथ्स हमारे पास ज्यादा हो रही हैं, तो ये हमें बताए कि इन्फेक्शन फर्टिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ये चीज हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लुक एट द एग्जांपल ऑफ CFR राइट नाउ। अब CFR की इस वक्त की रियल टाइम की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है कि इस वक्त का डाटा हमें बताता है कि CFR रेट, केस फर्टिलिटी रेट इंडिया के अंदर, ईरान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 2% है। कितना है? 2%। इसका मतलब है कि 2% रेट है। अब इसका मतलब हम स्पीकिंग में ये समझेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स सबकी एक जैसी होंगी, नहीं। पाकिस्तान में 16,000 लोग डेथ्स हुई, ईरान में 68,000 डेथ्स हुई, और जो इंडिया है उसमें 1.7 मिलियन individuals have died so far. So, in accordance to what I have said earlier, the case fatality rate varies, it's not constant. It varies according to the time, it varies according to the location. And this value is just giving an idea that this is the case fatality value we are obtaining, and we are gaining trend more towards the disease prevalence। यानी हम क्या हम डिजीज की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, स्टैटिक फेज में अटेन कर रहे हैं, हमारी डिजीज का प्रेवलेंस रिड्यूस होता जा रहा है। ये है वो फर्टिलिटी वैल्यू जो हमें बता रही है कि
आपके पास केस फर्टिलिटी वैल्यू 2% आ रही है, में ये वैल्यू फरवरी में 20% थी, और उसके बाद इस साल उनकी जो वैल्यू है वो 0.5% पे आ रही है। तो इसका मतलब है दे आर डूइंग समथिंग गुड टू रिस्ट्रेन द डिजीज। ओवर हियर द वैल्यू ऑफ केस फर्टिलिटी रेट इज जस्ट एन इंडिकेटर ऑफ द ट्रेंड कि डिजीज का प्रेवलेंट ट्रेंड क्या है, ये ग्राफ में ऊपर की तरफ है या रिड्यूसिंग डाउन ट्रेंड आ रहा है। ये एस्टिमेशन है हमारे पास केस फर्टिलिटी का। इसके बाद जो नया ट्रेंड जिसके ऊपर हम बात करते हैं पर्सन्स ईयर के ऊपर, इसको भी आप प्रोग्नोसिस के एस्पेक्ट से देखें। जैसे हमने पर्सन्स ईयर के बारे में पहले बात की हुई है, वही बात है, कोई चेंज नहीं मैं कर रहा, सिर्फ आज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्सन ईयर में एक ट्रेंड होता है कि अगर आप एक डिजीज को फॉलो करें, let's say for let's say I am putting few things over here right now, यही कलर सेट कर लेता हूँ। देखें, मैंने एक डिजीज कोर्स को लिया, और डिजीज कोर्स को मैंने लिया जनाब कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी, एंड आई फॉलोड देम फ्रॉम 0 टाइम पॉइंट टू 5 years। 5 years तक मैं दो लोगों को फॉलो करता हूँ, तो पर्सन ईयर का टाइम मेरे पास कितना आ गया, 5 साल इसके हो गए, ए के 5 years और बी के भी 5 years आ गए। सो द टोटल टाइम persons per year time duration calculated is 10 persons year time duration। इसका एक अल्टरनेट और भी है, उसका अल्टरनेट ये है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दीज टू इंडिविजुअल्स फॉर 5 years from 0 to 5 years, I just stick to 5 individuals and follow them for 2 years of time duration। ठीक है, यानी बहुत सारी ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें मुझे जल्द से जल्द डाटा लेना होता है और उनकी सिविरिटी होती है, या बाज़ औक़ात मेरे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दो लोग जो है ये कम है, इनको मैं इंक्रीज करने के चक्कर में वेट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं पर्सन ईयर का टाइम ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लूंगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर हियर आर एक्स वाई जी, लेट्स से पी। अच्छा, अब ये इंडिविजुअल्स मैंने फॉलो किए फॉर 2 years and these are 5 in number। Now these individuals are also giving me the total time duration of 10 years persons per year। ठीक है, हालांकि इन्होंने 2-2 साल ही लिया है मेरे स्टडी ग्रो कोहर्ट के साथ, सिर्फ 2 साल गुजारे हैं, बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर 5। सो ये एक अलहदा से तरीका है कि जिसमें मैं प्रोग्नोसिस के बारे में किसी भी डिजीज में असेस कर सकता हूँ। अगेन, इस पैरामीटर में मुझे एक चीज का ख्याल रखना है कि क्या मेरी डिजीज का रिस्क ऑफ डेथ 5 साल या 3 साल या 4 साल के ऊपर ज्यादा हाई है, या शुरू के दिनों में मरीज जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें इसको यूं कह दूं कि ये कोरोना के केस का काम हो रहा है, और कोरोना में मैं ये कहता हूं कि कोरोना के इंसिडेंट्स की जो वीक्स हैं, ये कर लेते हैं इसको ऐसे कि कोरोना के पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कोरोना के पेशेंट्स को हम फॉलो करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहले 2 जो हफ्ते हैं वो ठीक गुजार लेते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो रिस्क जो है उनका मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो 4th और 5th वीक में, 4th और 5th वीक ड्यूरेशन में जो रिस्क है वो उनका हाई है। तो ऐसे केस में मुझे इस डिजीज़ के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये वाले चूज़ करने चाहिए जिनका स्टडी ड्यूरेशन लॉन्गर हो एज़ कंपेयर टू द फर्स्ट 2 years टाइम ड्यूरेशन, या फर्स्ट 2 months के टाइम ड्यूरेशन के। ये वो लोग हैं जो चौथे 5वें हफ्ते में फ़ौत हो गए। मैंने फ़र्ज़ करें कि यहाँ से लेके पहले 2 हफ्तों के मरीज़ उठाए थे, तो इनसे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी एज़ कंपेयर टू दीज़ इंडिविजुअल्स, बिकॉज़ जो डेथ है वो लेटर इवेंट में हो रही है, लेटर डिजीज द डिजीज कोर्स में हो रही है। मुझे उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना है। तो दिस इज जस्ट अनदर alternate way for presenting the prognosis estimation। Now all this is basically building up a narrative towards the survival assessment। ये सब कुछ जो अभी तक आपने किया है, इसमें आप बेसिकली एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कोई टाइम पॉइंट कि क्या इंसान जिंदा रहता है कैंसर के अंदर, और कैंसर के अंदर जिंदा रहने वाले लोगों को आप एस्टिमेट करते हैं 5 years सर्वाइवल के साथ। 5 years एक आर्बिट्ररी नंबर है,
आर्बिट्ररी नंबर का मतलब यह है कि जनरली एज्यूम किया जाता है कि जो कैंसर का मरीज होता है वो ट्रीटमेंट के 5 साल तक अगर जिंदा रह जाए तो दैट इज अ वेरी सक्सेसफुल स्टोरी, and the patients who die within that 5 years is basically a failure of a treatment. Now there comes another question which says that suppose the individual in question we are talking about begins its life from 2000, it appears normal, there is nothing wrong with the breast cancer, and in 2008 the woman came across a surgery because she felt a lump and the surgery was successfully done, but in 2010 she died. Now it is assumed as a failure of a treatment on terms of 5 years survival के 5 साल के अंदर अंदर फोत हो गया. This may be due to any metastatic complications, this may be due to anything else, but if she died because of a breast cancer, the 5 year survival assume that the individual died because of a failure. Now let's say the same individual which is being diagnosed in 2008, instead of that diagnosis the individual is residing in an area where she is well off, she has an early screening mammographic program, and there is already a higher incidence of that breast cancer. So there is already pretty niche ke, population के अंदर screening हो. And she came across that surgery incidence in 2005. जो सर्जरी उसने 2008 में करवानी थी उसने 2005 में करवा ली because of that lump. तो 2010 तक जिंदा रहा. अब ये 5 years उसके पूरे हो गए and that this time duration we call it as a success. ठीक है, इसका मतलब एक अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एक रिगोरस अर्ली स्क्रीनिंग प्रोग्राम या अर्ली डिटेक्शन टूल, स्क्रीनिंग हो या डिटेक्शन हो, could largely influence the ultimate fate of a survival of an individual. यानी अब आप यहाँ पे एक ट्रिक देखें, 5 year सर्वाइवल का मतलब किसी की लाइफ का डेथ और नॉट डेथ के दरमियान में फैसला करना नहीं है कि whether she is dying or not dying. There is not a comparison about it. It is just an arbitrary value which is trying to assess the failure and success, whether she is able to survive that much longer duration or not. Acha. And in my just few minutes earlier, I talked to you about the lead time. Lead time वही advantage है जो उसने 2008 और 2005 के दरमियान में गुजारा. This is the lead time. ये है वो lead time जिसका उसको advantage हो गया based on that earlier surgery. ये कहा जाता है दिस इज हाउ वी मेक अ सर्वाइवल, कि यहाँ से अब हम सर्वाइवल चार्ट बनाएं. अच्छा, आप फर्ज करें अगर हम एक सर्वाइवल चार्ट ड्रा करना चाहें, सर्वाइवल कर्व्स होती हैं और हम एक सर्वाइवल चार्ट ड्रा करना चाहते हैं कि इंसान कितनी देर तक जिंदा रहा, तो उसमें अब हमारे पास एक सर्वाइवल चार्ट के लिए 2-3 तरीके हैं. अभी जो हम आज के लिए करेंगे वो है ऑब्जर्व्ड सर्वाइवल और उसके ऊपर हम बात करें. तो अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे हम ये लेते हैं कि years in study कितने रहे, यानी उस इंडिविजुअल जिसको भी हमने स्टडी किया वो कितने अरसे तक जिंदा रहा. और इधर हम बात कर लेते हैं ऑन y एक्सिस वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल, how long that individual survived. So ideally speaking, a person should remain survive or disease free 100%. And let's say the study is, we are talking about 5 years, so we stick to 5 years, 1 2 3 4 and 5. Now if I assume that I am calculating a response of a therapy on 2 hypothetical populations, तो मैं कहता हूँ जनाब मैंने सर्वाइवल निकाला है, तो अब मैं सर्वाइवल निकाल के आपके सामने रखूंगा, आप लोग खुद भी एस्टिमेट करके बताइए. एक पॉपुलेशन ये थी और इस पॉपुलेशन के, और दोनों में पॉपुलेशंस में जो सर्वाइवल है वो ऐसा आया, यहाँ पे 100% है और यहाँ पे हम कह देते हैं कि जनाब ये 10% हो गया, ये 0% है, 20%, 30, 50 कर लो और ये 100 तक जा रहा है. एक पॉपुलेशन, इस ए पॉपुलेशन के अंदर
कुछ इंडिविजुअल्स थे जिनको मैंने एक ट्रीटमेंट दी, उस ट्रीटमेंट के बाद द सर्वाइवल ऑफ दैट इंडिविजुअल्स remain longer. And then there is another alternate population, and in this population the survival value is again 10%, again the 10%, and they too coincide, that's fine, and the values are 10% over here, equivalent to 10% over here as we observed. So and this is population B. Let's say एक दो किस्म के हम कैंसर एज्यूम कर लेते हैं, और एक कैंसर है जो कि हम ब्लैक कलर में कर रहे हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज लंग कैंसर. And let's say there is another cancer which is mentioned over here as blue, and this is called as prostate cancer. And it is totally a hypothetical example which we am presenting over here, and I am saying that there are different time points, that 3 years, 4 years, and then this is 5 years duration estimated over here. Something similar over here, 4 years, 3 years, 2 year और 1 year का टाइम लाइन. अब मैं आपके सामने ये डाटा रख रहा हूँ, दो बार्स मैंने बनाई हैं. एक बार है जो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को मैंने एक दवाई दी और मैंने ये चेक किया कि मेरी दवाई से क्या उनका सर्वाइवल इंक्रीज किया, और एक दवाई मैंने दी लंग कैंसर के पेशेंट्स को, वही दवाई, और मैंने उनको चेक किया कि क्या कितने अरसे तक वो जिंदा रहे. ये वैल्यू जो वाई एक्सिस पे आ रही है दैट इज द परसेंटेज सर्वाइवल. बेस्ड ऑन दिस ग्राफ आप ये एज्यूम करेंगे कि सर ये दो लाइनें जो हैं ये दोनों 10% पे मिल रही हैं, सो मेरा ख्याल है कि दोनों में सर्वाइवल तो है, लेकिन 10% तक है, कम है. मैंने कहा ठीक, अच्छा सर्वाइवल किस में है? 3 साल तक, तकरीबन 3 साल तक प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स 100% पे जीते रहे, तकरीबन 3 years तक. ठीक है ना? Now the number of individuals remain alive up to 3 years in prostate cancer based on my drug of choice. While in lung cancer, administration of that drug reduced their initial survival. There is a steep drop, 50% drop हो गया जैसे ही मैंने उनको लंग कैंसर वालों को ये दवाई दी थी. तो इससे आपको ये पता चला कि प्रोग्नोसिस किस तरह से बनाएंगे आप किसी भी ड्रग ऑफ चॉइस का अगेंस्ट एनी डिजीज. अब यही ड्रग ऑफ चॉइस को आप कोई केमिकल कंपाउंड भी कर सकते हो, इसी चीज को आप किसी टेक्निक के साथ भी रेप्लिका कर सकते हो, और आप एस्टिमेट कर लोगे कि सर्वाइवल कर्व आपको क्या स्टोरी बता रही है. इस केस में प्रोस्टेट कैंसर में ड्रग इफेक्टिव है 3 साल तक सर्वाइवल इंक्रीज करने के लिए या गुड सर्वाइवल देने के लिए. While in lung cancer the drug is not at all recommended because इसकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं. ठीक है, तो आप इस ड्रग को यूज नहीं करेंगे. That is how you calculate the observed survival values. Now coming back to the observed survival value, एक तो था कि जो आपने बिल्कुल एक्चुअल सर्वाइवल की वैल्यूज जो थी वो आपने कैलकुलेट कर ली 5 year सर्वाइवल के साथ. एक है कि भाई हमें इस तरह से समझ नहीं आई कि ऑब्जर्व सर्वाइवल अब हम एक्चुअल लेंगे, हर वैल्यू को उसकी अपनी जगह से एस्टिमेट करेंगे. ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके सामने पड़ी हुई हैं. ऑब्जर्व सर्वाइवल लेना है, हाइपोथेटिकल डाटा है आपके पास पेशेंट्स का जो 2000 से 2004 तक ट्रीट किए गए और उनको फॉलो किया गया टिल 2005 तक. नाउ द ईयर ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 2000 and the patients are followed from 2005 till 2005. Now ये ऐसे ही है जैसे हम जाते हैं ना किसी भी जगह स्टडी कोहर्ट को बनाने के लिए, तो पहले दिन ही हमें 100 सैंपल नहीं मिल जाता, हमें डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे पेशेंट्स मिलते हैं. तो इसी तरह से नंबर ऑफ पेशेंट्स एनरोल्ड इन ईयर 2000 वर 84, and out of these 84 individuals 44 individuals showed a good survival, and then followed in the next year 2001 62 individuals were enrolled, and 2001 के अंदर जो 62 individuals enrolled हुए उनमें से 1 individuals ने good survival हमें दिखाया. और फिर इसी को हमने टेबल को थोड़ा सा रीअरेंज किया है. इस टेबल को मैंने कैसे रीअरेंज किया है? मैंने इस टेबल को ईयर वाइज प्लान पे रीअरेंज किया. मैंने आपको यूं करके दिखा देता हूँ, ऐसे. अब देखिए, ओह सॉरी, यूं, अब ऐसे समझ लो आप. ईयर ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट्स नंबर ये लिख दिया, ये पेशेंट नंबर वैसा ही रहा. अब मैंने कहा कि फर्स्ट ईयर में कितने लोग जो थे वो पहले साल तक जिंदा रहे,
अब मुझे पता चला 44 यहाँ से, 31 ये वाले, 50 ये, 29 और 43, यूं मैंने कैलकुलेट कर लिया। मैंने ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर 2 साल तक कौन से लोग हैं जो कि जिंदा रहे? तो उन्होंने मुझे बताया जनाब 21 इंडिविजुअल्स जो 2000 में थे वो इंडिविजुअल सरवाइव किए। अब जो 2001 में एनरोल हुए थे वो 2002 में भी जिंदा है, 2003 में भी जिंदा है। तो 2003 वाले मैंने उठा लिए और यहाँ पे वो मैंने वैल्यूज लिख दी 14 की, और जो 20 आया वो यहाँ से आया। सो द वैल्यूज आर बीइंग फॉलोड फ्रॉम हियर टू हियर। दिस इज द स्टाइल ऑफ ड्राइंग दिस टेबल and I'm just putting those values 21, 14, 20 and 16 over here, 13, 10 and 13, 10, 6 and 8। अच्छा, अब इसके बाद वही प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन जो मैंने पहले की थी, और बहुत सारे लोगों ने उसको देख देख के चिढ़ से जाते हैं कि यार ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। तो ये उसकी एग्जांपल में ही बात हो रही है कि प्रोबेबिलिटी अगर हम एस्टिमेट करें ऑफ सर्वाइविंग फॉर फर्स्ट ईयर, वो कैसे होगी? वो होगी 197। ये 197 कहाँ से आया भाई? ये 197 आया फर्स्ट ईयर के लोग जो सरवाइव किए। फर्स्ट ईयर का मतलब ये है कि जो 2001 में एनरोल हुए थे उनमें से 44 लोग पहले साल तक जिंदा रहे। 2002 में जो एनरोल हुए थे, 2002 में 62 में से 31 इंडिविजुअल्स 2002 में हमें नजर आए। 2001 के एनरोल लोग जो 2002 में जिंदा रहे वो भी हमने रख लिए, क्योंकि उनको ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल इज 1 year। Similarly, we get along and then we make a total that says 197. Now 197 divided by 375 is equal to the probability of surviving first year, P1। और ये वैल्यू हमने लिख ली 0.52। ये प्रोबेबिलिटी है उन लोगों की सर्वाइवल की। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग फॉर द सेकेंड ईयर क्या है? सेकेंड ईयर की प्रोबेबिलिटी, यानी सिर्फ इस साल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। इस साल की प्रोबेबिलिटी में निकालूंगा तो सिर्फ इस साल के इंडिविजुअल पेशेंट्स लूंगा, 71 डिवाइडेड बाय 197 माइनस 197 ये वाले लोग, माइनस करूंगा उसमें से वो वाले लोग जो सेकंड ईयर में जिंदा नजर नहीं आ रहे। कौन से लोग नजर नहीं आ रहे? 43 नजर नहीं आ रहा। This 43 subtraction is being done. Why? Because these individuals are not present in the second year of their survival. So their probability for second year is missing. That's why I have subtracted this value. And so on, I go for 5 years probability of surviving calculations. जब मैं ये सारी calculations बना लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, तो फिर मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी की एस्टिमेशन और बनेगी कि मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी दवाई से या मेरे इस टूल से 5 years का ओवरऑल सर्वाइवल कैसा निकला। ओवरऑल सर्वाइवल फॉर 5 years। अभी तक मैंने देखा है इंडिविजुअल 1 year तक, 2 साल तक, 3 साल का, 4 का, 5 का। अभी मैंने 5 years का निकालना है, तो मैं फिर 5 years की एस्टिमेशन बना रहा हूँ। और जो मैं 5 years की एस्टिमेशन बना रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि जो मेरे पास 5 years की एस्टिमेशन आ रही है वो सबको मल्टीप्लाई किया है, P1, P2, P3, P4 और P5, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर इसके बाद एक ग्राफ ड्रा करूंगा। लेकिन उस ग्राफ के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा जब मैं कैप्लन मेयर करूंगा, तो उससे पहले आपके साथ वो शेयर कर लूंगा। उसकी 2 वजह ये है कि एक तो ये कि आपने आज जो पढ़ा है इसको आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद होगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने क्या पढ़ाया हमें समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसको एक दफा खुद गो थ्रू करो, स्पेशली दिस टेबल। बाकी सब चीजें आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि जनाब क्या हो रहा है, प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस कहाँ से स्टार्ट होता है, डायग्नोसिस क्या होता है, सर्वाइवल टाइम पॉइंट क्या होता है। ये आपको मैंने जर्नली बातें बताई हैं जो, क्योंकि कैंसर के पेशेंट्स में अमूमन ये कन्फ्यूजन रहती है। लेकिन ये वाला एस्टिमेशन ऑब्जर्व सर्वाइवल का ये आपको हेल्प देगा बनाने के लिए कि प्रोबेबिलिटी एक एक साल की कैसे बनती है, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अब यहाँ तक ही है ये वाला लेक्चर, और क्या पूछते हो मुझसे?